I have taught you simple present tense, right? And in simple present tense, I have taught you 10 rules. And we had some questions of MCQ related to simple present tense, and you all answered me well. तो आज हम लोग सीखेंगे present continuous tense, right? So here is the what present continuous टेंस। जैसा कि हम लोग देखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे रूल्स थे, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी बहुत सारे रूल्स हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंपल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इससे हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, फिर हम इसके रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हियर व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। What is present continuous tense? Answer. It shows those actions. It shows those actions which are happening. Which are happening. Listen. What have we written here? What is present continuous tense? तो it shows those actions which are happening. इसका मतलब क्या होता है कि present continuous tense क्या है? Present continuous वैसा tense होता है जो हमें यह दर्शाता है, जो हमें यह दिखाता है कि कोई काम जो है वो कंटिन्यू है, कोई काम जो है वो हो रहा है, it is happening, right? अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। If we talk about the structure of present continuous tense, so here is a what? Subject plus is MR plus V4 plus object. Right. This is the structure of present continuous tense. And if we have to change into negative, we write down here only not, like subject plus is MR plus not plus V4 plus object. And interrogative is only M plus subject plus V4 plus object and question mark. And interrogative negative sentence is MR plus subject plus not plus V4 plus object and question mark, right? So only I write here the positive structure of present continuous tense. So what is this? Subject plus is MR plus V4 plus object. अगर हम कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अभी हो रहा है, दैट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट, राइट? जैसे मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि एक्शन अभी हो रहा है, ये कंटिन्यू है, इट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट। सो हियर इज व्हाट आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट continuous tense. I am teaching you present continuous tense. ये क्या शो कर रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, this action is happening, so it is what? Present continuous tense. I am teaching you present continuous tense. अगर और भी एग्जांपल के बारे में बात करें, you are writing, आप लिख रहे हो अभी, I am speaking, मैं बोल रहा हूँ, ये क्या शो कर रहा है कि कोई काम अभी हो रहा है, an action is going on, an action is happening. So it is what? The definition of present continuous tense. This is the structure, and here we have written one example. If you want to write one more example, you are writing now. You are writing now. आप अभी लिख रहे हैं. ये भी क्या है? Present continuous tense है. You are writing now is also present continuous tense. It shows what? An action is continue, ongoing, or it is happening at this moment. So it is what? Present continuous tense. Now we are going to study about the more rules of present continuous tense. So note it down fast. So now we are going to study more rules of present continuous tense. At first we have studied what is present continuous tense. Present continuous tense क्या है कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग इज एम आर कहाँ यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी कि आई हो
तो वहां पे एम का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, ही सी इट और सिंगल नेम, वहां पे इज का प्रयोग करेंगे। और बाकी सबके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ और रूल्स पढ़ेंगे कि और कहां-कहां हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें, है ना, ये हमारा एक्चुअली रूल नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में ऑलरेडी हम एक रूल पढ़ चुके हैं। तो रूल नंबर 1 में अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इट शोज नियर बाय फ्यूचर एक्शन। इट शोज नियर बाय फ्यूचर एक्शन। इट शोज नियर बाय फ्यूचर एक्शन। स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक कॉमन वर्ड लेते हैं हम लोग गोइंग। यहाँ पे हम गोइंग की जगह पे अराइविंग, कमिंग को भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, नियर बाय फ्यूचर एक्शन का मतलब क्या होता है। नियर बाय फ्यूचर एक्शन का मतलब होता है वो काम जो काम हम करने जा रहे हैं, उस काम के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, हम उस काम को बहुत जल्दी करने वाले हैं, कोई काम बहुत जल्दी होने वाला है, तो वो भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, हालांकि मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी हो चुकी है और अब मैं आपको बताने ही वाला हूँ, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो बात मुझे आपको बताना है वो बात तो बताना स्टार्ट नहीं किया हूं मैं, लेकिन वो बात बताने की तैयारी कर चुका हूं, ऑन प्रोसेस है, बहुत जल्दी वो बात मैं आप लोग को बता दूंगा। तो वैसे सेंटेंसेस भी, वैसे एक्शन भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। और एग्जांपल के बारे में बात करें, सी इज अराइविंग टुडे, सी इज अराइविंग टुडे। देखो, वो अभी पहुंची नहीं है, लेकिन वो निकल गई है वहां से और आज वो पहुंच रही है। तो नियर बाय फ्यूचर एक्शन, उसका आने का जो टाइमिंग है वो क्या है, नियर बाय फ्यूचर एक्शन। तो कोई भी एक्शन जो नियर बाय फ्यूचर हो, जो काम बहुत जल्दी होने वाला हो और उस काम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका हो, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 था, इट शोज नियर बाय फ्यूचर एक्शन। रूल नंबर अगर हम 2 के बारे में बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे, एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, परमानेंट एक्शन, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, टेम्पोररी एक्शन, जो कुछ समय तक वो जारी रहेगा, फिर कुछ समय के बाद वो नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। जैसे रूल लिखेंगे, इट शोज टेम्पोररी एक्शन, टेम्पोररी एक्शन, है ना, इट शोज टेम्पोररी एक्शन, यानी कि वैसे काम जो अभी तो हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो काम हो जाएगा फिर उस काम को हम छोड़ देंगे। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं था, उसमें जितना भी एक्शन होता है सब परमानेंट एक्शन होता है। वो एक दिन, एक सप्ताह, एक साल, 2 साल तक का नहीं होता है, वो बहुत लंबे समय तक होता है, होने का जो पैटर्न है वो वैसा ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी काम कर रहे हो थोड़े समय के लिए वो काम करोगे, फिर उस काम को छोड़ दोगे। जैसे मान लो वी आर लर्निंग टेंस, वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग टेंस। अब देखो, हमारा टेंस का सीखना क्या है, ये एक टेम्पररी एक्शन है। जैसे ही हम लोग टेंस सीखेंगे फिर क्या करेंगे, टेंस को सीखना छोड़ देंगे और दूसरा कोई टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसे आप नोट करें जल्दी से। अगर हम इसके और भी रूल्स के बारे में बात करें, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पे देंगे। जैसे नाउअडेज, नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, नाउअडेज, नाउअडेज she is working here, nowadays she is working here, in
दिनों वह यहाँ काम कर रही है। तो यहाँ जो काम कर रही है वो इसका परमानेंट एक्शन नहीं, थोड़ा दिन के लिए यहाँ काम कर रही है, फिर क्या करेगी, यहाँ काम वो छोड़ देगी, कहीं और चली जाएगी। तो इस तरह के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो टेम्पोररी एक्शन जो होता है वो क्या शो करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद नियर बाय फ्यूचर एक्शन जो होता है वो क्या शो करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर कोई काम जो अभी हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो भी आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हमें दो चीज सामने आएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, परमानेंट एक्शन, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है, टेम्पररी एक्शन होता है। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है। अगर आप एक टेंस अच्छा से पढ़ लेंगे तो बाकी टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑल द टेंसेस, राइट। So now we have studied two rules and one definition of a present continuous tense. These are the basic rule of present continuous tense. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों से सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मिक्स हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम लोग कितना समझ में आ रहा है। क्लियर है, चलो फाइन।